بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے فاخرہ جبین کا یہیں پہ عشق ٹھہرا ہے۔ یہ بھی بہت پیارا ناول ہے، فیملی سٹوری ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بھی کل والے ناول کی طرح بہت پسند آئے گا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم 2 پارٹس میں پڑھیں گے۔ میری کوشش ہے اگر تو ایک پارٹ میں مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم 2 پارٹس میں پڑھیں گے کیونکہ یہ لانگ ناول ہے، کمپلیٹ مکمل ناول فاخرہ جبی کا ہے یہیں پہ عشق ٹھہرا ہے۔ نہ جانے کیوں آج دل اس قدر باغی ہو رہا تھا کہ وہ ہر کام خلاف معمول کیے جا رہی تھی۔ صبح ماما کی بے تحاشا ڈانٹ کے باوجود ناشتہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ خلاف معمول وہ اسکول دیر سے پہنچی تھی اور اپنی اس کوتاہی پر ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی تھی، پرنسپل کی ڈانٹ کے باوجود۔ خلاف معمول ہی اس نے بریک میں پورے 20 روپے کی چاٹ کی پلیٹ پر خرچ کیے تھے۔ چھٹی کے وقت معمول کی اجلت سر پر سوار کیے بغیر وہ اطمینان سے اسکول سے باہر نکلی تھی۔ نہر کے پل پر بیٹھے پٹھان لڑکے سے اس نے 3 روپے کا بھٹا خریدا تھا، جس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے اس تمام عرصے میں غالباً پہلی مرتبہ نہر کی سرخ پانیوں کی لرزیدہ لہروں کو غور سے دیکھا تھا۔ فلک بوس درختوں کی پناہ میں سنسان اور ساکت سڑک پر خوف زدہ ہوئے بغیر وہ بہت سہولت کے ساتھ ہوا کی نرم سرسراہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے مین روڈ تک آئی تھی، اور یہاں آ کر بھی حسب معمول نہ تو اس نے دوپٹہ پیشانی تک کھینچا تھا اور نہ ہی اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی، بلکہ وہ یوں اطمینان کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی گویا بہت عرصے بعد چہل قدمی کا شوق پورا ہو رہا ہو۔ خلاف عادت اس نے نزدیک سے گزرتے ایک اسکول بوائے کو منہ بھی چڑھایا تھا، جس سے جھیم کر اپنی سرخ بائی سائیکل کی رفتار قدرے تیز کر دی تھی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پاؤں میں چپتے ہوئے مسلسل اس کی خود ساختہ تفریح میں حائل ہو رہی ہے۔ اس نے یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا، مست الست پیپلی والا سائیں پیپل کے چوڑے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور صدیوں پرانا پیپل کا درخت اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹے پورے کا پورا اس پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظریں یوں ہی بھٹکتی ہوئی سائیں کے کشکول پر جا پڑی تھی، جو غیر متوقع طور پر کسی بنجر زمین کی طرح ویران تھا۔ تو گویا آج ہر کام ہی معمول کے خلاف ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں سائیں کا خالی کشکول سے بے حد مزہ دے گیا۔ سینڈل بند کرنے کے بعد اٹھتے ہوئے اسے یوں ہی کسی خیال کے تحت بیگ کے اندرونی خانے کھنگالنے شروع کر دیے۔ بیگ میں اس وقت ایک گھڑی تھی جس کا ٹوٹا ہوا اسٹرپ بدلنے کا ارادہ وہ پچھلے 2 ماہ سے کر رہی تھی، مگر ابھی تک اسے پایا تک مل تک نہ پہنچا سکی تھی۔ اس کے علاوہ ایک نیچرل پنک لپسٹک تھی جسے لگانے کے لیے اب اسے باقاعدہ مشقت کرنا پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مڑی توڑی چنگم تھی اور 10 روپے۔ فی الحال اس کا کل اثاثہ کچھ سوچ کر اس نے 5 روپے کا نوٹ بیگ میں سے گھسیٹا۔ مہینے کی آخری تاریخ میں ابھی 2 دن باقی تھے، گویا آخری دن کا کرایہ ماما سے لینا پڑے گا۔ اس نے بند مٹھی کشکول میں کھولنے سے پہلے ذرا کی ذرا پیپلی والے سائیں کی طرف دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے سانپوں کی طرح لہراتی بل کھاتی سیاہ لٹیں اس کے گلے میں جھول رہی تھی، آنکھیں بند مگر ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اسے لگا وہ بند آنکھوں سمیت اس کی ہچکچاہٹ پر مسکرا رہا ہے۔ خجل ہوتے ہوئے اس نے بیگ میں سے دوسرا نوٹ بھی نکالا اور کشکول میں ڈال کر خود سامنے سے آتی بس پر سوار ہو گئی۔ ٹکٹ کنڈکٹر نے اس کے پاس آ کر کہا تو یوں ہی اپنی خالی ہتھیلیوں پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ ٹکٹ چند لمحے منتظر رہنے کے بعد کنڈکٹر خاموشی سے اگلی سواری کی طرف سے رک گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کل دے دوں گی۔ طویل سانس لے کر وہ قدرے مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بس سے اتر کر 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ لکڑی کی بہت سیدھا دروازے کو کھول کر سیلن زدہ دیواروں والے گھر میں داخل ہوئی تو پورا صحن سنسان سی اداسی میں اونگ رہا تھا۔ اکتائی ہوئی زرد دھوپ دیواروں سے چپکی ہوئی تھی۔ گملوں میں لگے پام کے پودے بالکل ساکت کھڑے تھے، اور انہیں دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنے بیڈ روم میں لگی اس بیلے ڈانسر کی تصویر یاد آ جاتی تھی جو دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلائے ایک مخصوص زاویے میں کھڑی ہوتی تھی۔ کچن میں کھٹر پٹر کے ساتھ گنگنانے کی آواز سن کر وہ دبے پاؤں آگے بڑھی تھی اور اس قدر زوردار طریقے سے سلام جھاڑا تھا کہ چولہے کے پاس کھڑا سالم اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا اور وہ اس کی گھبراہٹ پر بے اختیار ہنستی تھی۔ شرم کرو لڑکی، اگر میں بوقت سنبھل نہ جاتا تو اب تک اس کڑکڑاتے گھی میں تل چکا ہوتا۔ اس نے خفگی سے اسے گھورا۔ تو تم سے کس نے کہا تھا میری آواز سنتے ہی پھدکنا شروع کر دو؟ اس نے بیگ وہی چھوٹی سی میز پر رکھ دیا۔ یعنی ایک تو آپ آفت ناگہانی کی طرح نازل ہوں اور اس پر بندہ گھبرائے بھی نہ۔ چہ خوب، سالم جلے بھنے انداز میں کہتا دوبارہ چمچہ اٹھانے لگا تھا۔ لیکن یہ تم کر کیا رہے ہو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ چپس بنا رہا ہوں۔ پڑھنے لکھنے رونگنے کے بعد واحد یہ کام ہے جو مجھے کرنا آتا ہے۔ ہائے، بات کرتے کرتے وہ ہاتھ جھٹک کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ غالباً
घी का कोई छींटा पड़ गया था। वाक़ई ख़ासे माहिर लगते हो इस काम में। तंज़िया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसने सर तापा सारिम को देखा, जिसने जीन्स के पांचे चढ़ा रखे थे और शर्ट के आस्तीने, और अब अपनी जली उँगली को झटकते हुए ज़ेरे लब ना जाने किसे कोस रहा था। कुछ खुदा का खौफ करो, भागकर बरनाल लाने की बजाय तुम खड़ी दाँत निकाल रही हो। शाबाश है भई। सारिम ने जैसे उसे शर्मिंदा करना चाहा, मगर वो अपनी जगह जीठ बनी रही। अब कहाँ निकाल रही हूँ दाँत, वो तो मैंने बचपन में ही निकाल लिए थे। अव्वल नंबर की ढीठ हो तुम। उसकी बेनियाजी पर ताव खाते हुए सारिम ने खट से चूल्हा बंद किया। देख लेना, एक चिप्स भी नहीं दूंगा तुम्हें, और आ लेने दो आंटी को। तुम्हारी शिकायत ना लगाई तो नाम बदल देना। वो बच्चों की तरह नाराज होने लगा। हैं, मामा कहीं गई हुई हैं? वो एकदम चौंकी। हाँ, अम्मा राबेल की तरफ गई थी, इन्हें भी साथ ले गई। उसने खफा खफा से लहजे में आगाह किया। ओहो, अम्मा राबेल की तरफ गई हैं तो जनाब की यहाँ मौजूदगी के सिलसिले में राबेल के नाम पर उसका लहजा अजहद शोख हो गया था। अम्मा का ख्याल है शरीफ लड़की अपने होने वाली ससुराल में नहीं जाते। सारिम ने अपने चेहरे पर शराफत तारी करने की भरपूर कोशिश की। मगर उन्होंने तो शरीफ लड़कों के बारे में कहा होगा ना। उसकी शरारती अंदाज पर सारिम ने उसे घूरा तो फिर घूरता ही चला गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? उसके मुतवक्किल लहजे पर वो खिलखिलाकर हंस दी। क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? भाई ना वो मामूल की बेजारी, ना कनूतियत। हाँ भाई, बस कभी कभार दिल चाहता है ना कि हर काम रूटीन से हटकर किए जाए। जैसे आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस पूरी कायनात को उलट कर रख दूं। ज़मीन ऊपर हो और आसमान कदमों तले, और घड़ी की सुइयां उल्टे रुख घूमने लगे। सूरज मगरिब की बजाय मशरिक की गोद में जा गिरे। और बस बस, मुझे लगता है आज तुम सर के बल चलती आई हो। सारिम ने उसको टोक कर कहा। बाय द वे मिजाब, क्या तुम खुश हो? उसने संजीदगी से उसकी आंखों में झांका, जैसे नन्ही मुन्नी कितनी ही सुनहरी किरणें सूरज की हाले से फूट रही हूँ। ऐसी ही कोई कैफियत उसके चेहरे पर भी थी। मिजाब ने एक नज़र उसे देखकर कंधे उचका दिए। मालूम नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है खुश होने को। उसकी बेसाख्ता मासूमियत पर सारिम उसे बस एक नज़र देखकर रह गया था। अच्छी बात है, कभी कभी इस मासूम की बात मान लेनी चाहिए। उसने चिप्स की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई, मगर उसके नफी पर सर हिलाने पर कंधे उचकाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। तुम तो अब सोओगी ना? उसने जाते जाते पूछा। नहीं, आज मुझे ट्यूशन के लिए जाना है। अगर सो गई तो जल्दी उठ नहीं पाऊंगी, और मैं पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती। यू नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, उसने दानिस्ता बहुत आम से लहजे में कहा था। मगर सारिम ठिठक कर रुक गया था। प्लीज सारिम, कुछ मत कहना। उसका इरादा भांप कर वो फौरन ही बोल उठी थी। यूं समझो कि मुझे इसकी ज़रूरत है। वैसे भी जिनके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाना है वो प्रिंसिपल साहबा के जानने वालों में से हैं, और वो बहुत इसरार कर रही थी क्योंकि उन्हें एक अच्छी टीचर की ज़रूरत है। उसने अच्छी पर जोर देते हुए बात को मजाक में टालना चाहा। सारिम ने उसकी कोशिश को मजीद जांच कर मजीद कुछ कहने का इरादा मुलतवी कर दिया, फिर मुस्कुराकर उसे विश करता हुआ ऊपर चला गया, जहाँ छत पर मौजूद वाहिद कमरा अपने मकीन का मुंतजिर था। बख्तियार हाउस का स्याह बुलंद वाला गेट खुला हुआ था, और दूसरी तरफ इंतहाई चौकस और खौफनाक बुल टेरियर अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे इस तरह ताड़ रहा था कि वो आगे बढ़कर बैल बजाने की हिम्मत भी न कर सकी थी। चौकीदार नाम की कोई चीज़ यहाँ मौजूद ना थी, और गुज़श्ता 5 मिनट से वो इस खौफनाक कुत्ते और घर के मालिकान को हजार कोसों से नवाज चुकी थी। गर्मियों की तवील दोपहर अपने इख्तिताम तक पहुंचने के बाद भी अपनी सारी तपिश यहीं कहीं छोड़ गई थी। अपने माथे पे आए पसीने को साफ करते उसने झुंझलाकर वापसी का कसद किया ही था, जब गन कांधे पर लटकाया इमारत के अंदरूनी हिस्से से चौकीदार बरामद हुआ था। तवील ड्राइवे अबूर करने के बाद उसने सवाली नजर से मिजाब को देखा तो उसने इंतहाई खौफजदा अंदाज में अपना तारुफ करवाया था। अच्छा अच्छा, जाएं जी, बेगम साहब बड़ी देर से आपके मुंतजिर हैं। उसके कहने पर वो 2 कदम आगे बढ़ी थी। सुनो, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं, तुम्हें गेट यूं खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो कहे बगैर न रह सकी। जवाबन चौकीदार हल्का सा कहका लगाकर हंस दिया था। ओ बीबी, ये जो अपना शहजादा है ना, इसका इशारा बुल टेरियर की तरफ था। मिजाब लाहौल वाला पढ़कर रह गई। कम अज कम उसके नज़दीक शहजादे ऐसे नहीं होते थे। ये बैक वक्त 3-4 आदमी को चीर फाड़ सकता है। उसकी मौजूदगी में कोई बंदा कोठी के करीब भटकने की जरूरत भी नहीं कर सकता। वो अपनी मूंछों को संवारते हुए सीना फुलाकर उस तरह बोल रहा था गोया बुल टेरियर का नहीं अपना तारुफ करवा रहा हो। वो सर झटक कर आगे बढ़ी, मगर फिर रुक गई। अगर ये बैक वक्त 3-4 आदमी को चीर फाड़ सकता है तो मेरा तो चंद लम्हों में भरता बनाकर रख देगा। उसके पुरसोच अंदाज पर चौकीदार ने दांत निकालते हुए उसकी जहानत की दादी और उसकी बुजदिली से हज उठाते हुए अपनी हिमायत में लेकर वापस पलट गया। लो बीबी, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। चौकीदार ड्राइवर के हैं दरमियान में उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। पथरीली सतह पर अपने ही जूते की टक टक सुनते हुए उसने ड्राइवर के दोनों अतराफ में फैले सबज घास से हटे लॉन को देखा, जिसके आखिरी किनारों पर सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों की बहुतायत थी। उसके ऐन सामने सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत थी, जिसका जायजा लेते हुए उसकी भटकती हुई नज़र टेरेस पर खड़े उस शख्स पर जा रुकी
थी, जिसे देखकर उसके कदम बे इख्तियार और बिला इरादा ही रुक गए थे। वो शख्स बिल्कुल तन्हा था, मगर हाथ नचा कर ना जाने क्या बोल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद गज़ब और इश्तियाल नुमाया था। यूँ लग रहा था जैसे वो अपने सामने वाले को फांसी पर लटका देना चाहता हो या अपने हाथों से उसे कत्ल कर देने का इरादा रखता हो। मगर सामने वाला था कहाँ? वहाँ तो सफ़ेद दीवारें थी, या एक बंद दरवाज़ा, या फिर लोहे की बनी हुई ग्रिल। ओ मोहतरमा बेगम साहिबा, कमरे में आपकी मुंतज़िर हैं। कब में चौकीदार की झुंझलाई हुई आवाज़ उभरी थी। उसने सटपटा कर उस शख्स से नजरें हटाई। तेज़-तेज़ कदमों से बरामदे की 3 सीढ़ियाँ अबूर करके सामने वाले दरवाजे में घुस गई। वहाँ एक मुतनासिब कद-ओ-कामत की खातून सफ़ेद लिबास पहने अपने दोनों बच्चों के साथ पहले से मौजूद थी। हल्के-फुल्के मेकअप में उनके तीखे नकुश बेहद जाज़िब लग रहे थे। मेरा नाम मीज़ाब है, उसने बैठते हुए अपना तारुफ करवाया। जी, मिसेस मुराद मुझे आपके बारे में ख़ासी तफ़सील से बता चुकी हैं। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल का ज़िक्र किया। मेरा नाम ज़ुबारिया फ़ैज़ान है, और खातून ने अपना तारुफ करवाया था, और उसके साथ ही एक तवील गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, जो कि कतई एकतरफ़ा थी। और इस पूरी गुफ्तगू में साबका टीचर की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी, अपनी बेतहाशा मसरूफियत और बच्चे की पढ़ाई का बार बार जिक्र किया गया था। मिसेस मुराद आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब आप उनकी कही गई बात को सच साबित करें। आई विल डू माई बेस्ट मैडम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मिजाब ने सारी बात बहुत तहम्मुल से सुनकर जवाब दिया था। ओके, फिर मैं चलती हूँ। बच्चे अपना तारुफ आपसे खुद करवा लेंगे, और बच्चों अपनी टीचर को हरगिज़ तंग नहीं करना, राइट? उन्होंने अपना पर्स संभालते हुए दोनों बच्चों को ताकीद की, जो सोफे के एक कोने में घुसे आपस में सरगोशियां कर रहे थे। माँ की बात सुनकर उन्होंने झट से इस बात में सर हिला दिया, और उनके जाने के बाद मिजाब ने जरा खोल कर सांस लिया, दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया। माई नेम इज सनान, लेकिन यार लोग मुझे सनी कहते हैं। छोटे बच्चे की आंखों में शरीर सी चमक थी। एंड आई एम मेहरान मानी, बड़ा निस्बतन संजीदा था। मिजाब को दोनों बच्चे एक ही नज़र में अच्छे लगे थे, सो उनसे थोड़ी सी फ्रेंडशिप के बाद अभी उसने किताबें खुलवाई ही थी, जब अचानक ही कोई दराज कामत शख्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मिजाब ने सर उठाकर देखा, फुल पुलिस यूनिफॉर्म में वजाहत और मर्दानगी का शाहकार उसके सामने था। पापा। दोनों बच्चे किताबें भूलकर उसकी तरफ लपके थे। हेलो पापा की जान। और उसने कदरे झुककर दोनों बच्चों को अपने मजबूत बाजों में समेटकर एक साथ ऊपर उठा लिया, और प्यार करते हुए सामने सोफे पर विराजमान हो गया था। पापा, इस दफा इतने दिन लगा दिया अपने सन ने बाप के कंधे से झूलते हुए कैप उतारकर अपने सर पर सजाली मानी बाप के बाल संवारने लगा। पापा, आज डिनर बाहर होगा ना? पापा, कितने मुजरिम पकड़े गए और कितनों को मार पड़ी। सनी और मानी छोटे छोटे सवालों में उलझ गए थे, और मिजाब की नजरें कारपेट पर बने डिजाइन में। जब कई मिनट तक बाप के साथ बच्चे भी उसे मुकम्मल नजरअंदाज किए रहे, तो वो टोके बगैर न रह सकी। एक्सक्यूज मी सर। उसकी नरम आवाज़ पर उन्होंने उस तरह चौंक कर उसे देखा था, गोया अब तक उसकी मौजूदगी से बेखबर हो। पापा, ये हमारी नई टीचर मिजाब, और टीचर ये हमारे पापा हैं, एसपी फैज़ान हसन बख्तियार। मानी ने झट दोनों को मुतारिफ करवाया। हेलो। एसपी फैज़ान की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत का तासुर उभरा था, और फिर मासूम हो गया था। हेलो। मिजाब ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर फॉर्मेलिटी निभाई थी। सही है, बच्चों के स्टडी आवर्स हैं, इसलिए अगर आप उसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी थी। ओ यस, व्हाई नॉट। उसने फौरन ही दोनों बच्चों को गोद से उतार दिया था। ओके बॉयज, पहले जमकर पढ़ाई करो, उसके बाद ये लाड प्यार चलेगा। वह एक बार फिर दोनों बच्चों को प्यार करके उठ खड़ा हुआ था। सनी और मानी बुरे बुरे मुंह बनाते दोबारा किताबें खोलने लगे थे। जब वो बख्तियार हाउस से बाहर निकली, तो सलूनी शाम पूरी तरह फिजा पर अपना डेरा जमा चुकी थी। वो सुबह की निस्बत खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं ज़रा से चेंज के लिए वो कितना ख़वार हुई हूँ। उसने स्याह कोलतार की हमवार सड़क के किनारे चलना शुरू कर दिया था, जिसके दोनों तरफ कोठियों के सामने एक तवील कतार में लगे हुए यूकलिप्टिस के तवील कामत दरख्त उस पर झुके चले आ रहे थे। घर से बख्तियार हाउस तक का सफ़र उसने पैदल ही तय किया था, और अब वापस भी पैदल ही जाना था। पूरे वजूद की थकन बस उसके उठते गिरते कदमों में आकर सिमट गई थी। न जाने क्यों उसे अपने आप पर तरस आने लगा था। अगर उसे पछताने की आदत होती, तो पूरे दिन में खर्च करने वाले रुपयों पर 1000 मरतबा पछता चुकी होती, कि उस वक्त अगर वही रुपए बैग में मौजूद होते तो इतनी मुशक्कत ना झेलनी पड़ती। मगर पलट कर देखना या गुजरे हुए लम्हों पर नौहा करना वो कब का भूल चुकी थी। जो है जैसा है की बुनियाद पर अपनी नज़र बस सामने रखती थी। जब किस्मत का लिखा मिटा नहीं सकती और तकदीर के फैसलों से टकराने की हिम्मत नहीं, तो फिर सूद व ज़िया का हिसाब क्या रखना। घर में दाखिल होते ही उसकी सोच उस नुक्ते पर आकर ख़त्म हो गई थी। मिजाब जानू इतनी देर मामा बेताब होकर उसकी तरफ लपकी थी। अरे सारिम ने आपको बताया नहीं कि? हाँ बताया तो था, मगर आप परेशान हो गई थी दिल के हाथों मजबूर होकर, है ना?
उसने खुद को हशाश बशाश ज़ाहिर करने की पूरी कोशिश की और फिर उनका हाथ थामे कमरे में आ गई। हाँ, मुझे तुम्हारी बेहद फ़िक्र रहती है मिज़ाब। उन्होंने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। सारा दिन इसी सोच में गुज़र जाता है कि क्लास में ढेर सारे चीखते-चिल्लाते, उधम मचाते बच्चों को कैसे काबू करती होगी तुम? और कैसे भाँत-भाँत के लोगों के दरमियान बसों वैगनों में सफ़र करती होगी तुम? मिज़ाब ने देखा, फ़िक्र और परेशानी उनके चेहरे पर सबत होकर रह गई थी। ओह मम्मा, ये किन सोचों में रहती हैं आप? मैं तो एक-एक चीज़ को एन्जॉय करती हूँ, ऐश करती हूँ सारा दिन, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आपकी तरह सारा दिन घर में बैठी रहूँ ना तो बीमार पड़ जाऊँ। आप खामख़ा परेशान मत हुआ करें। उसने कॉटन का दुपट्टा गोल-मोल करके चारपाई पर फेंकते हुए कहा। तो और क्या करूँ? ये बीमारी तो मेरी जान को चिपक गई है, वरना मैं भी कहीं जॉब कर लेती और कुछ नहीं तो छोटा-मोटा बुटीक ही स्टार्ट कर लेती। छोड़े मामा, ये जो कुछ हमारे पास है क्या कम है हम दोनों के लिए? मामा को हसासियत की ज़द में आते देखकर वो धीरे-धीरे बेनियाज़ी के गुंबद में सिमटने लगी। मामा उसकी बात पे चुपचाप सर झुका गईं। वो पाँव जूतों की कैद से आज़ाद करके दीवार पर लगे मैले से आईने के सामने खड़ी हुई थी। मिज़ाब, कम क्या हम सारी ज़िंदगी यूँ ही गुज़ारेंगे? मामा के लहजे में यासियत अमेज़ उदासी घुली हुई थी। उसने पलट कर देखा, वो सर झुकाए किसी गैर मर्ई नुक्ते पर नज़रें जमाए बैठी थी। उसने मामा के बदन पर रेशम कमखाब के सिवा कोई दूसरा कपड़ा न देखा था, मगर अब वो इंतहाई कम कीमत सूती लिबास पहने हुए थे। हीरे से मुज़य्यन जुड़ाऊ कंगन पहनने की आदि कलाइयाँ बिल्कुल सोनी थी। सुर्ख़ व सफ़ेद बशाश चेहरे ने ख़िज़ां की सारी ज़र्दियाँ अपने नकूश में समेट ली थीं। क्यूटेक्स से सजे रहने वाले गुलाबी नमो नाज़ुक हाथ अब खुरदरे हो रहे थे। झूठे बर्तनों का मैल कुचैन उन पर जम कर रह गया था। ये वो मामा थी जो पानी का गिलास भी माँगती थी तो नौकरों की एक लाइन उनके सामने आ खड़ी होती थी। और अब उसकी आँखें डबडबा सी गईं। हाय ए वक़्त! ये तेरी करिश्मा साज़ियाँ, ये तेरे अजब निराले खेल। मिज़ाब, क्या हम सारी ज़िंदगी यूँ ही गुज़ारेंगे? उसने चौंक कर मामा को देखा। उसे लगा मामा भी उसकी तरह हसीन माज़ी की खुश रंग तितली के पीछे भागी हुई होंगी। और जब ये तितली उनके हाथ से फिसल कर उड़ गई होगी तो और उन्होंने उंगलियों की पूरों पर उतरे चंद रंग और अपनी खाली हथेलियाँ देखी होंगी तो उसी की तरह उनका दिल भी खटकर रह गया होगा। तो गया, मैं और मामा इतनी देर से एक ही लम्हे की दहलीज पर खड़े थे। उससे पहले कि मामा एक बार फिर अपना सवाल दोहराती वो तेजी से बाहर निकल आई थी। मामा को क्या मालूम कि ये सवाल तो मैं एक दिन में खुद से 1000 बार पूछती हूँ, कभी बस स्टॉप पर खड़े होकर, कभी नहर किनारे चलते हुए, कभी कोलतार की स्याह सड़क को अपनी थकन ज़दा कदमों से रौंदते हुए, कभी ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को फार्मूला समझाते हुए। और हर बार ही इस जमा तफरीक का हासिल एक बड़ा सा सवालिया निशान होता है और मैं हमेशा सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं इस सवाल को हल भी कर पाऊंगी कि नहीं। सामने लॉन का मंजर देखकर वो बरामदे की सीढ़ियां उतरते हुए रुक सी गई। वो 15-20 दिनों से मतवातर यहाँ आ रही थी और उस शख्स की हरकत अक्सर ही उसे ठटका देती थी। वो शख्स या तो खपती था या फिर ज़हनी मरीज़, जब ही हर वक्त अजीबोगरीब हरकत करता रहता था और मिज़ाब हमेशा ही उसे देखकर अफ़सोस के एहसास में घिर जाती थी। बेशक वो शख्स इंतहाई पुरकशिश था, उम्र भी बमुश्किल 26-27 साल थी। ऐसे में उसकी दीवानों जैसी हरकत यकीनन बहुत तकलीफ देती। उस वक्त भी वो लॉन के बीचों बीच अपने दोनों बाजू आसमान की तरफ फैलाए खड़ा था। फासला ज़्यादा होने की वजह से वो उसके अल्फाज तो ना सुन पा रही थी, लेकिन हिलते हुए होंठ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। अब वो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींचे दो जानू होकर ज़मीन पर बैठ गया था। उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। वो धीरे-धीरे हँसने लगा था और फिर यकायक ही उसकी हँसी फलक शगाफ के हकों में बदल गई। मिज़ाब का दिल दुःख से भर गया। यकीनन उस शख्स पर दीवानगी का दौरा पड़ रहा था। वो बेतहाशा हँसते हुए आगे की जानिब कदरे झुक गया था और जब उसने सर उठाया तो वो हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था। ओह मेरे खुदाया! वो तो हमेशा से कमज़ोर दिल थी। किसी बच्चे की आँख में आँसू देख लेती तो घंटों उदास रहती थी और अब उस ऊँचे लंबे मर्द को यूँ आँसू बहाते देखकर उसका बस नहीं चल रहा था कि खुद भी जाकर उसके साथ धाड़े मार-मार कर रो दे या फिर नन्हे बच्चों की तरह उसके बाल संवार कर उसे थपकते हुए सारे आँसू अपने हाथों से पोंछ डाले। उसने निचला होंठ दाँतों तले दबाकर बमुश्किल खुद को रोने से बाज रखा था। तभी उस शख्स ने ज़रा-सा रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा तो उसके यूँ मुतवज्जा होने पर अपनी जगह पर गड़बड़ा कर रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ वो भी अपनी जगह साकत हो गया। मिज़ाब ने बैग के स्ट्रिप को अच्छी तरह कंधे पे जमाते हुए कदम फ़ौरन आगे बढ़ा दिए। अगरचे वो किसी हद तक नफ्सियाती मरीज़ लगता था, मगर ऐसा पागल भी न था कि वो यूँ मुँह उठाए उसकी हरकत से लुत्फ़अंदोज़ होती रहती। गेट के करीब पहुंचकर उसने पलट कर देखा। वो दोनों हाथ पुष्ट पर जमाए सर झुकाई इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा था। वो ताज्जुब से सर हिलाती गेट पार कर गई थी और ना जाने क्यों ये मंज़र उसके असाब पर उस तरह सवार हुआ था कि वो ना सिर्फ रास्ते भर उसके बारे में सोचती रही थी, बल्कि घर आकर चाय पीते हुए उसने बेख्तियार ही सारम से उसका तज़किरा भी कर डाला था। जवाबन वो भी इज़हार अफ़सोस करके रह गया था। वो है कौन? एसपी साहब का छोटा भाई है। उसका कोई इलाज वगैरह तो हो रहा होगा ना? वो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तसल्ली अमेज़ लहजे में कह रहा था। मालूम नहीं, मैंने इस बारे में किसी से पूछा ही नहीं।
उसने कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार किया। मेरा ख्याल है कोई ना कोई इलाज जारी होगा, ज़ाहिर है पढ़ी लिखी फैमिली है, यूँ इसकी तरफ से गफलत तो नहीं बरत सकते ना। खैर अगर तुम उस वक्त फारिग हो तो मेरा ये नया कॉलम देख लो ताकि मैं शाम तक उसे एडिटर की मेज़ तक पहुंचा सकूं। सारिम ने बात बदलकर राइटिंग टेबल पर अपना कॉलम उठाकर उसे थमा दिया। वो इन दिनों एक हफ्तावार मैगजीन में कॉलम लिख रहा था। मेरा ख्याल है मैं नीचे जाकर ज़रा तसल्ली से इसका पोस्टमार्टम करती हूँ। वो पेपर्स हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई थी और सारिम के घूरने की परवाह किए बगैर मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतर आई थी। वह तैयार होकर किचन में आई तो मामा बड़ी नफासत से गोल गोल पराठे तवे पे डाल रही थी। सारम भी नाश्ते के लिए यही मौजूद था। वो भी चौकी घसीट कर उसके पास ही टिक गया। मामा ने खस्ता से पराठे पर अचार की फांक रखकर चिंगेरिस के सामने सरका दिया। पराठे की खुशबू से ही उसका दिल उलटने लगा था। मालूम नहीं कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी मैं खुद को इस मामूल का आदी नहीं बना सकी। वो उसने चाय का कप भरकर सामने रख लिया। और ये सारम भी तो है, इसी पराठे और अचार के साथ डटकर नाश्ता करता है। उसने कुनखियों से कॉलेज जाने के लिए तैयार बैठे सारिम को देखा, जो 1.5-2 पराठे अचार से खाने के बाद अब मजे से गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था। और उसने बादलों खासा पराठे का नवाला तोड़कर अचार पर घुसाया और मुंह में रख लिया। मामा ने तवे पर रोटी डालते हुए जरा की जरा उसकी तरफ देखा और उसे बेचारगी से नवाला हलक से नीचे उतारते देखकर उनके हाथ कतरे सुस्त पड़ गए थे। मिजाब, अगर दिल नहीं चाह रहा तो अंडा बना दो, उन्होंने पुकारा। मिजाब उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर संभलते हुए मुस्कुरा दी। इट्स ओके मामा, उसने अगला निवाला मुंह में डालते हुए कदर उजलत का मुजाहरा किया और आधा पराठा सिर्फ और सिर्फ मामा की खातिर खाया था। वो जानती थी कि नहीं खाएगी तो मामा सारा का सारा दिन उसी टेंशन में गुजर जाएगा। ब्रेड, जैम, पोर्ज, मक्खन, अंडे, दूध, जूस, क्या कुछ नहीं होता था डाइनिंग टेबल पर। तब भी ये नाश्ता करते वक्त हजार नखरे दिखाती थी और अब मैंने कभी भूले से भी उसे किसी चीज़ पर मुंह बनाते नहीं देखा। इस दफ़ा तनख्वाह मिलेगी तो मिजाब के लिए अलग से जैम वगैरह मंगवा कर रखूंगी। मामा ने उसे जल्द ही नाश्ते से हाथ खींचते देखकर सोचा था। सारिम की वालदा फिरदौस खाला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मिजाब में जाने से पहले उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। हस्ब मामूल उसकी पेशानी पर प्यार करते उन्होंने ढेरों दुआएं उसके साथ की थी। मामा बावर्ची खाने में मसरूफ होने की वजह से उसे दरवाजे तक छोड़ने तो ना सकी, अलबत्ता उनकी नज़रों ने किचन की खिड़की से ढेरी तक का ताक़ुब किया था। दरवाजे के सामने बनी 2 खस्ता हाल सीढ़ियों पर मजबूती से कदम जमाकर जब वो गली में आई थी तो एक अजीब सी बेजारी और खौफ ने उसे सर ताप अपने हिसार में ले लिए थे। एक दफ़ा फिर वही रास्ते उसके कदमों तले आ ठहर गए थे, जो कभी उसके ख्यालों में मदगम होकर लम्हों में सिमट जाते थे और कभी उकताहट मायूसी की जद में आकर सदियों पर मोहित हो जाते थे। वही गली के मोड़ पर परचून और पान की दुकानें, वही बस स्टॉप पर भांत भांत के लोग, वही खटारा सी लोकल बस और दमे की आखिरी स्टेज पर पहुंचे हुए मरीज की तरह हाँफता हुआ इंजन, वही तेल से चिपड़े बालों और सुर्ख मफलर वाला कंडक्टर जो देरीना शनासाई की बदौलत ना सिर्फ दांतों की नुमाइश करके उससे सलाम करता था, बल्कि उसके लिए मखसूस सीट खाली करवाना भी अपना अवलीन फ़र्ज समझने लगा था। और फिर पिपली वाला साईं, वही स्कूल, वही बच्चे, वही शोरगुल, वही वजूद में घर करती हुई थकन। और जब पूरे दिन की ये मुशक्क़त भरी बेजारी अपनी इंतहा को पहुंची तो उसकी कनपट्टियों में जैसे हथौड़े बरसने लगे थे। टीचर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मानी की आवाज़ पर वो चौंक सी गई। उसे दोनों हाथों से कनपट्टियां दबाते देखकर वो फिक्रमंद सा हो गया था। हाँ, बस यूं ही जरा सर में दर्द है। उसे टाल कर वो सनी की तरफ मुतवज्जह हो गई थी। मानी फौरन ही वहां से खिसक गया। जब वापस आया था मुलाजमा चाय का कप हाथ में लिए उसके साथ थी। मम्मा पापा के सर में जब भी दर्द हो वो चाय जरूर लेते हैं। थैंक यू। मानी मिजाब को उस पर टूट कर प्यार आया था। काम चुके खत्म हो चुका था, इसलिए दोनों बच्चे किताबें समेट कर उठ गए थे और उस वक्त वो चाय के आखिरी घूंट ले रही थी जब कोई तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया था। सीढ़ियां चुके मिजाब की अकब में थी, इसलिए वो फौरी तौर पर आने वाले को ना देख सकी, मगर जब कदमों की चाप एकदम ही रुक गई तो पलट कर देखने पर मजबूर हो गई थी। ये एसपी साहब का भाई था। आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखते वो गालिबन उसे देखकर ही छटका था और मिजाब को देखकर उसकी आंखों में जो चमक उभरी थी उसने एक सानिये के लिए मिजाब को चौंकाकर उसकी तरफ से रुख मोड़ लेने पर मजबूर कर दिया था। उसने चाय का कप मेज पर रखकर अपना बॉल पॉइंट और डायरी बंद करके बैग में रखने लगी। वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले उसके हैंड सामने आ रुका था और जिन गहरी नजरों से वो उसे देख रहा था वो ठिठक कर रह गई थी। जो कुछ भी है आखिर है तो पागल ना, और पागलों से क्या भाई। उसने अपने चारों तरफ घूमता देखकर दिल ही दिल में गड़बड़ा कर रह गई। पर्स की जिप बंद करके उसने फौरन झुककर सैंडल पहली, जो मौका मिलते ही हसबे आदत उतार चुकी थी और अभी वो सीधी भी ना हुई थी जब वो अचानक धम से उसके बराबर आ बैठा। उस गैर मतवक्का हरकत पर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो सटपटा कर 1 सेकंड की देर किए बगैर उठी थी, मगर वो अगले ही लम्हे उसकी कलाई अपने मजबूत हाथ में लेकर एक झटके से उसे अपने बराबर बिठा चुका था। मिजाब को अपने उसान फौरन
سے پیشتر خطا ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر پورے اصرار سے مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے بمشکل تھوک نکل کر خود کو چھڑانا چاہا۔ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا مگر تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی۔ وہ بہت نرم دوستانہ لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ کلائی پر گرفت البتہ جھونکی تو تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ دیوانگی کی حالت میں نفسیاتی مریض غیر معمولی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سو اب اس تجربے نے اسے مزید ہراساں کر دیا تھا۔ اسے اپنی کلائی کا خون رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہاری بات سن رہی ہوں۔ میزاب نے بھرپور کوشش کی کے باوجود اس کی آہنی انگلیوں میں جنبش نہ ہوئی تھی۔ سنو گی نا؟ وہ بے یقین تھا۔ ہاں ہاں سنوں گی۔ میزاب نے فوری اقرار پر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور میزاب بمشکل خود کو فوری طور پر اٹھنے سے باز رکھا تھا۔ سنو، اوپر کمرے میں ایک لاش پڑی ہے، اس نے سرگوشی کی تھی۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ شش، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی کے انداز میں تنبیہ کی تھی۔ میزاب کی آنکھیں حیرت سے شاید خوف کی وجہ سے پھیل گئی تھی۔ وہ تو اسے تھوڑا بہت نفسیاتی مریض سمجھا کرتی تھی مگر وہ تو پورے کا پورا پاگل نکلا۔ سنو، تم جولیس کو جانتی ہو؟ وہ میزاب سے سوال کر رہا تھا جو نہ سمجھی کے عالم میں منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے چلی جا رہی تھی، جو بلیک جینز، سفید براق شرٹ اور سلیکی سے بنائے گئے بالوں کے ساتھ کہیں سے بھی ذہنی طور پر کھسکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی پراسرار چمک، ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ، اس کی باتیں، اس کا انداز، او میرے خدا! اسے لگا وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ بمشکل تھوک نکلتے ہوئے اس نے کن اکھیوں سے اپنے اطراف میں دیکھا۔ ملازمہ سنی اور مانی کے ساتھ ابھی کچھ دیر قبل ہی باہر نکلی تھی اور چوکیدار جولیس کو ماریا سے بے حد محبت تھی۔ تم جانتی ہو ماریا بالکل تمہارے جیسی تھی مگر تھی بہت اسٹوپڈ۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہنے جا رہا تھا۔ میزاب کو کچھ معلوم نہ تھا بلکہ اس کی سماعتیں اس قابل تھی ہی کہاں وہ کچھ سن پاتی۔ وہ تو دم سادے کن اکھیوں سے اسے اٹھتا ہوا دیکھ رہی تھی اور جب یوں ہی بات کرتے کرتے وہ ذرا سا گھوما اور اس کی پشت میزاب کی طرف ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گئی اور پھر اسے اپنی بات میں کسی قدر منہمک جان کر اس نے پھرتی سے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا مگر وہ اس سے زیادہ پھرتیلا نکلا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دے کر واپس صوفے پر گرایا تھا اور کڑے تیوروں کے ساتھ اس پر جھک آیا تھا۔ اب اگر تم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھو آئی ول کل یو۔ آنکھوں میں اترتی حد درجہ خونخواریت اور وحشت نے میزاب کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ بے انتہا سرد و سپاٹ آواز، لہجے کا کھردراپن، میزاب کی حلق سے ابلتی چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ گئی تھی اور معلوم نہیں بے تحاشا خوف کی حد بہادری سے جا ملی تھی یا اس کو ڈھیلا پڑتا دیکھ کر میزاب کی ہمتیں مجتمع ہو گئی تھیں۔ جب ہی تو اس نے پوری قوت سے اس شخص کو پرے دھکیلا تو خود برق رفتاری سے وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ اس اندھادھند کوشش کے نتیجے میں وہ بری طرح سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کے باوجود وہ لڑکھڑا گئی۔ دایاں ہاتھ سیدھا ان کرسیوں پر جا پڑا تھا جو سائڈ ٹیبل سے گرنے والے گلدان کی تھیں۔ بے اختیار ہی اس کے منہ سے کراہ نکلی جس نے اسے حیران و پریشان ساکت وجود کو متحرک کر دیا تھا۔ ارے رکیں، جسٹ اے منٹ۔ وہ غالباً اس کے پیچھے لپکا تھا مگر میزاب ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر بھاگ لی۔ ڈرائیو وے سے گیٹ تک کا فاصلہ اس نے پوری قوت سے بھاگتے ہوئے عبور کیا تھا۔ چوکیدار حسب عادت گیٹ پر موجود نہیں تھا ورنہ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھتا۔ گیٹ سے باہر نکل کر طویل سنسان سڑک بھی اس نے تقریباً بھاگ کر ہی طے کی تھی اور جب سڑک کے اختتام پر موڑ کاٹتے ہوئے اس نے ایک درخت کا سہارا لیا تو دل سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ سانسیں بری طرح ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں اور حلق میں جیسے کانٹے سے اگ آئے تھے۔ مزید پیدل چلنے کی ہمت نہ رہی تو اس نے ہاتھ دے کر قریب سے گزرتی ٹیکسی کو روک لیا تھا۔ ایڈریس سمجھاتے اس نے لاشعوری طور پر ڈرائیور کو بغور دیکھا تھا۔ بیٹھے جی۔ ڈرائیور نے ایک ٹک اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر گڑبڑا کر کہا تھا۔ وہ ایک دم چونک گئی، پھر خجل ہو کر دروازہ کھولنے لگی۔ آج تو ہر شخص کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے، اس سے بیٹھتے ہوئے پریشان ہو کر سوچا۔ میزاب، تم کچھ دنوں سے زوباریہ کی طرف نہیں جا رہی کیا؟ پرنسپل صاحبہ کے آفس میں کرسی سنبھالتے ہوئے چونک سی گئی۔ وہ ابھی یہ پوچھیں گی کہ کیوں نہیں جا رہی تو کیا کہوں گی کہ میں ایک پاگل سے خوف زدہ۔ تم نے بتایا نہیں؟ میزاب، زوباریہ کا کئی مرتبہ فون آ چکا ہے، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ جی وہ میری والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی اس لیے۔ اس نے بلا ارادہ ہی جھوٹ بولا تھا۔ کمال ہے بھئی، تم اس قدر سے غیر ذمہ دار تو کبھی بھی نہیں رہی۔ اگر مصروفیت تھی تو فون پر ہی انہیں اپنے نہ آنے کی اطلاع دے دی ہوتی اور یوں بھی 1-2 گھنٹے کی تو بات ہوتی ہے۔ اتنا سا وقت بچا کر تم کیا کرتی ہوگی؟ الٹا بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ وہ نخوت سے اس کی غیر ذمہ داری پر جتا رہی تھی۔
میڈم بات یہ ہے کہ میرے لیے اتنا سا وقت نکالنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے میں وہ انہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ انہیں پڑھانے نہیں جا سکے گی، مگر عین اسی وقت فون کی بیل بج اٹھی تھی اور پھر پرنسپل صاحبہ فون پر اس طرح مصروف ہوئی کہ وہ باقی بات کہنے کی حسرت دل میں لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ کیسا وقت آ گیا ہے ہم پر، اب ایسے لوگوں کی ڈانٹ بھی سر جھکا کر سننی پڑتی ہے۔ پرنسپل صاحبہ کا لہجہ سے راستے پر سلگاتا رہا اور اس وقت بھی اس کا منہ بنا ہوا تھا جب گلی میں داخل ہو رہی تھی۔ سامنے سارم کو ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ عموماً جب ماما کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو اسی ڈاکٹر کو گھر بلوایا جاتا تھا۔ وہ پریشان ہو اٹھی، قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہوتی گئی۔ سالم دونوں ہاتھ پشت پر باندھے غالباً پوری توجہ سے ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا، اس لیے اس پر نظر پڑنے کے باوجود اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سالم قریب پہنچنے پر اس نے آہستگی سے اسے پکارا، تب وہ ذرا سا چونکا۔ ہاں خیریت ہے، تم گھر چلو، میں آتا ہوں۔ اس نے اسے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتا پا کر اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا، مگر چہرے پر قدرے پریشانی کے تاثرات موجود تھے۔ وہ ہونٹ کاٹتی تقریباً بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ صحن اور برآمدہ خلاف معمول اس وقت بالکل خالی تھا، ورنہ عموماً اس وقت فردوس خالہ اور ماما برآمدے میں تخت پر موجود ہوتی تھی۔ وہ اپنا بیگ وہیں تخت پر پھینک کر کمرے کی طرف بڑھی اور جب اس نے ماما کو بستر پر نڈھال پڑے دیکھا تو دل بہت گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ ان کا زرد چہرہ، خشک ہونٹ، بند آنکھیں، ان کی کمزور سی حالت نے جیسے اس کی سب توانائیاں نچوڑ لی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فردوس خالہ کو دیکھا جو ماما کے سرہانے بیٹھی بڑی محبت سے ان کے بال سہلا رہی تھی۔ اس کی آواز پر ماما نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اس کی تسلی کے لیے نکاح سے مسکرا دی۔ کچھ نہیں بیٹا، بی پی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ڈاکٹر دوا دے گیا، ابھی کچھ دیر میں بھلی چنگی ہو جائیں گی تمہاری ماما۔ خالہ نے اسے بتایا تو وہ ماما کا ہاتھ تھام کر وہیں ان کے پاس ٹک گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا ہر وقت کا سوچنا ان کے لیے ٹھیک نہیں، ذہن کو سکون کی ضرورت ہے، مگر یہ مانتی کہاں ہے، نہ ڈاکٹر کی نہ میری۔ جب دیکھو پریشان، جب دیکھو متفکر، پہرو ایک ہی جگہ بیٹھ کر نہ جانے کیا تلاشتی رہتی ہیں فضاؤں میں۔ خالہ کی پیار بھری ڈانٹ پر ماما دھیرے سے مسکرانے لگی۔ میں نے تو 1000 بار کہا ہے دل کی بات مجھ سے کیا سن لیا کرو، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مگر یہ آپا کہتی ہے سمجھتی نہیں۔ ایسی بات مت کریں آپا، خدا کے بعد مجھے آپ کا ہی آسرا ہے، ماما نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا میرا خیال ہے اب میں کچھ کھانے کو لے آتی ہوں، بچی بھی بھوکی آئی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ماما نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ دس از ناٹ فیئر ماما، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں سرزنش کی۔ آپ تو کہتی ہیں کہ آپ بہت مطمئن، بہت پرسکون ہیں۔ اس کی بات پر ماما نے یوں نظریں جھکا لی تھی جیسا کوئی بچہ اپنی چوری پکڑے جانے پر نادم ہو۔ ماما آخر کیوں آپ ان حالات کو ذہن پر سوار کر رکھا ہے؟ کیوں ہمہ وقت ماضی کی راکھ کو ریتتی رہتی ہیں جس میں چھپی چنگاریاں آپ کو لمحہ بھر میں بھسم کر کے رکھ دیتی ہیں؟ میری طرف بھی تو دیکھیے، وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا ہے جو آپ کے ساتھ بیتا ہے، مگر میں نے اسے اپنی جان کا روگ بنا کر نہیں بیٹھی۔ میں آج بھی جینے کا حوصلہ رکھتی ہوں ماما، اس لیے کہ میں بیتے ہوئے وقت سے بے نیاز ہو چکی ہوں اور آنے والے دنوں کو ہوا بنا کر سر پر سوار نہیں کر رکھا۔ آپ ہی خود کو حالات کے دھارے پر بہنے دیجیے ماما، بلیو می، جینا بہت سہل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ وہ دھیرے دھیرے ماما کا اسٹیمنا بڑھا رہی تھی، مگر کب تک ہم یوں ہی آنسوؤں سے بھری لبالب آنکھیں چھلک گئی تو وہ ہونٹ بھیج کر رہ گئی۔ کیا ہوا ہے ماما ہمیں؟ ہم اب بھی بہت سے لوگوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کیا فردوس خالہ، سالم اور دوسرے بہت سے لوگ ہماری طرح نہیں جی رہے؟ اور اس نے بشاش لہجے میں ماما کی ساری مایوسی اپنے اندر جذب کر لینی چاہیے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو مزاح، یہ غربت مجھے تنگ نہیں کرتی، یہ اسرت ہماری مجبوری ہے اور میں اس سے سمجھوتا کر چکی ہوں۔ میری فکر، میری پریشانی صرف تم ہو مزاح، تمہاری وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ ان کے نم آلود لہجے پر وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ یہ خیال میرے لیے سہانے رو بن کر رہ گیا ہے کہ اگر ماما پلیز، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ اسے تڑپ کر ماما کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس طرح کی باتیں مت کریں، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی نا امیدی کے اندھیروں میں دھکیل دیں گی۔ میں ابھی مایوس نہیں ہوئی ماما، وہ انگلیاں چٹکھاتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس دنیا میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میں بھی کسی معجزے کی منتظر ہوں، ہو سکتا ہے ایسا ہی کوئی لمحہ ہماری زندگی میں بھی آ جائے۔ اور اس نے بڑی امید سے ماما کی طرف دیکھا تھا اور شاید اس کی پریشانی کے خیال سے ہی وہ مسکرا دی تھی۔ ہاں ہم دونوں کو انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے بڑی ممنونیت سے ماما کی حوصلہ بڑھاتی نظروں کو دیکھا اور پھر پلکیں جھپک کر سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ اگلی صبح ماما کی طبیعت کے پیش نظر وہ اسکول سے چھٹی کرنا چاہ رہی تھی، مگر ماما فردوس خالہ کے اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اوکے ماما، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں میری واپسی تک آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، رائٹ؟ اس کے کہنے پر ماما اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی۔ اور ہاں اپنا دوائیوں والا نسخہ دے دیں، میں واپسی پر دوائیاں لیتے آؤں گی۔ وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹی۔ تم رہنے دو، سالم لے آئے گا، وہ بیچارہ پہلے ہی ڈھیروں ذمہ داریاں لیے پھرتا ہے، کم از کم جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو خود کریں۔
راستے میں کئی میڈیکل اسٹور آتے ہیں، وہاں سے لے لوں گی۔ اس نے خود ہی نسخہ اٹھا کر بیگ میں ڈالا، الماری کے مخصوص خانے سے پیسے نکالنے لگی، جہاں سے محض چند روپے برآمد ہونے پر وہ حیرت سے ماما کو دیکھنے لگی۔ جواباً وہ نظر چرا گئی تھی۔ اصل میں کل ڈاکٹر کی فیس اور دوائیوں پر جو روپے خرچ ہوئے وہ سالم کے فیس کے تھے، اس لیے میں نے جمع شدہ روپے اسے دے دیے تھے۔ وہ تو نہیں لے رہا تھا، میں نے زبردستی ہی۔ خیر کوئی بات نہیں، جب تنخواہ ملے گی پھر لے آنا۔ ماما بستر کی چادر سے نادیدہ گھر جھاڑتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیات کو اندر ہی کہیں دفن کر کے خود کو نارمل ظاہر کرتی کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں سالم سیٹی پر کسی گانے کی دھن بجاتے اپنی سائیکل چمکا رہا تھا۔ ہاں بھائی بادشاہو، کدھر کے ارادے ہیں؟ کہو تو آج اس شاہی سواری پہ بٹھا کر اسکول چھوڑ آؤں تمہیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا تھا، نو تھینکس، کیونکہ مجھے یقین ہے جب بھی ہم اسکول پہنچیں گے یا تو یہ سائیکل کئی حصوں میں بٹ چکی ہوگی یا پھر میں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر آگے بڑھائی، جبکہ سالم کی گھورتی نظروں نے بہت دیر تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ کیا کروں، سارا دن یہ سوال اسے وقتاً فوقتاً تنگ کرتا رہا تھا۔ تنخواہ ملنے میں بھی کچھ دن باقی تھے اور اتنے دن دوائیاں نہ کھانے سے ظاہر ہے ماما کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ فردوس خالہ سے ادھار لینا اس لیے مناسب نہیں تھا کہ خود ان کے پاس کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ کپڑوں کی سلائی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ اگرچہ ٹیوشن اور تنخواہ کے ساتھ ان ماں بیٹی کا گزارا مشکل نہ تھا، مگر اس کی انا اور عزت نفس یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ اگر فردوس خالہ نے ہمدردی میں آ کر انہیں اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے تو وہ ان پر بوجھ بن کر رہ جائے۔ 100 مہینے کے آغاز میں وہ نہ صرف بجلی، گیس، پانی کے بلوں میں حصہ ڈالا کرتی تھی، بلکہ گھر کا کچھ سودا صرف لا کر بقیہ رقم ماما کو تھما دیا کرتی تھی۔ اور یہ رقم کبھی تو ماما کے علاج کی نظر ہو جاتی اور کبھی بسوں ویگنوں کے کرائے میں کھپ جاتی۔ آخر میں اس کی سمجھ میں یہی بات آئی تھی کہ وہ ایڈوانس میں تنخواہ لے لے گی، لیکن جب پرنسپل صاحبہ نے اس کی نہایت عاجزی سے کی گئی درخواست کو چٹکیوں میں اڑا دیا تو اس کا دل چاہا کہ وہ ان کے پھولے پھولے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دے۔ اور ہاں، وہ ایس پی کی مسز کا فون آیا تھا۔ مس میزاب، یہ کیا کرتی پھر رہی ہو تم اتنی چھٹیاں کرنے کا؟ آخر کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں پڑھا سکتی تو جا کر اپنا حساب بے باک کرو، انہیں جواب دے آؤ، وہ بیچاری کسی اور ٹیچر کا بندوبست کر لیں۔ بھائی میزاب، سچ تم نے تو مجھے شرمندہ کروا دیا ہے ان کے سامنے۔ وہ بد دلی سے ان کے سامنے کھڑی رہی۔ اگر اپنے خیالوں میں گم نہ ہوتی تو شاید ان کی لمبی چوڑی تقریر سنے بغیر ہی باہر نکل جاتی، مگر اب ساری باتیں سر سے گزرنے کے باوجود ایک بات نے اسے چونکا دیا تھا، اپنا حساب بے باک کرو۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اگر آخر میں اتنے دن پڑھاتی نہیں ہوں، ان کی فیس وصول کروں گی اور کہہ دوں گی کہ آئندہ پڑھانے نہیں آؤں گی۔ یہ خیال آتے ہی چھٹی کے بعد بختیار ہاؤس کی طرف چل پڑی، مگر اس کے بلند و بالا سیاہ گیٹ پہ نظر پڑتے ہی اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ اس جنونی شخص کی سرخ و وحشت زدہ آنکھیں اسے گیٹ کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جنہیں وہ اب تک نہ بھول پائی۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر بیگ پر اس کی گرفت خود بخود مضبوط ہو گئی، دونوں ہونٹ سختی سے بھیجے۔ وہ اس قدر محتاط ہو کر قدم اٹھا رہی تھی گویا ابھی پلٹ کر بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ارے میزاب بیبی، چوکیدار کی حیرت سے بھرپور آواز نے یکلخت ہی خاموشی کا پردہ چاک کیا تو وہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ گیٹ کی دوسری طرف سے صاحب آواز بھی نمودار ہوا تو وہ اپنے خشک ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے مشکل سنبھلی تھی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی آپ؟ اتنے دنوں سے آئی ہی نہیں۔ بچے تو پریشان تھے ہی، بڑوں کی بھی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ جی، بڑوں پر زور دیتے ہوئے وہ خاصا بے تکلف ہو رہا تھا۔ سنو، اس وقت گھر میں کون کون ہے؟ میزاب نے اس کی بتیسی کو پوری طرح نظر انداز کر کے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سب ہی جی، بیگم صاحبہ، بچے اور ایس پی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اسے جواب دیتے ہوئے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، اور وہ پاگل، میرا مطلب ایس پی صاحب کا بھائی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ بھی گھر پر ہی ہیں۔ او گاڈ، پھر میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً سے پیچھے پلٹی تھی، مگر چوکیدار لپک کر اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بیگم صاحبہ اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے فوراً اپنی وفاداری نبھائی۔ ان سے کہہ دینا میں پھر کسی دن آ جاؤں گی، فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نہ جی نہ، اگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ گیٹ سے ہو کر واپس گئی ہیں تو وہ مجھ سے ناراض ہوں گی۔ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اسے اپنی جگہ ڈٹے دیکھ کر وہ تل ملا گئی۔ شٹ اپ، تم کس طرح روک سکتے ہو مجھے؟ میری مرضی میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ دیکھیے جی، آپ مجھے سختی پر مجبور نہ کریں، چوکیدار نے سخت لہجے میں کہہ کر گن کندھے سے اتار لی۔ ہاؤ ڈے یو، تم مجھ پہ گن اٹھا رہے ہو؟ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مائی فٹ! وہ دبلے پتلے چوکیدار کی اس درجہ بدتمیزی پر آگ بگولا ہو کر رہ گئی۔ میں بھی تمہیں یہاں سے جا کر دکھاؤں گی، ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ مجھے، وہ پاؤں پٹک کر سخت لہجے میں کہتے ہوئے طوفانی انداز میں پلٹی تھی، مگر عین اسی وقت ایک لمبا چوڑا وجود راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے شرر بار نگاہوں سے اس گستاخ کو دیکھنا چاہا تھا، مگر یہ دیکھنا ہی قیامت ہو گیا تھا۔ تم
ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हेलो, बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए उसने कदरे झुक कर कहा था और मिजाब की जान गोया पल भर में हवा हो गई थी। दिल तो जैसे कुछ सानी को धड़कना ही भूल गया था, और अगर उसे उस वक्त वो स्टूपिड सी मारिया याद आ गई तो उस दफा कमरे में लटकने वाली लाश यकीनन मेरी ही होगी। इस ख्याल ने उसकी रही सही कुव्वतें भी ज़ायल कर दी, और फिर वो बदतमीज सा चौकीदार जो उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर अपनी मूंछें मरोड़ने लगा, उसके सामने अपनी दुर्गत बनने का सोच कर ही वो काम कर रह गई। हाँ जी, तो आप यहाँ से जाकर दिखाएंगी? चौकीदार ने दांत निकाले। भाई, हम तो नहीं जाने देंगे, वो कंधे उचकाकर उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। और बाकी रही बात हिम्मत की, तो मेरा ख्याल है आप हमारी हिम्मत के अजीमुश्शान मुजाहरे को भूली तो नहीं होंगी। दोनों बाजू सीने पर लपेटते हुए वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा, तो उसके सोए सोए हवास लम्हा भर में बेदार हुए और वो ऐन सामने डटा हुआ था। और दूसरी तरफ वो चौकीदार, एसपी साहब, बच्चे, बेगम साहिबा, उसकी जहन में एक झमाका सा हुआ था। सामने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक देकर वो गैर महसूस अंदाज में पीछे की तरफ हटी थी और फिर पूरी कुव्वत से गेट के अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। ड्राइववे और बरामदा अबूर करते ही धाड़ से दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुई तो अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान तमाम अफराद बुरी तरह चौंक गए थे। अरे मिज़ाब, क्या हुआ? खैरियत तो है? ज़ुबारी उसे यूं बदहवास देखकर उसकी तरफ लपकी थी। व्हाट्स प्रॉब्लम मिस मिज़ाब? एसपी फैजान सनी को गोद से उतारकर आंखों में बेतहाशा हैरत लिए उसकी तरफ मतवज्जा हुए। प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, पूरे 6 फुट की प्रॉब्लम पाली हुई है आपने घर में दूसरों को हरासा करने के लिए। अच्छे मुहाफिज हैं आप। एक फर्द आपके घर में महफूज नहीं रह सकता तो बाहर के लोगों को आप क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते होंगे। वो एकदम फट पड़ी थी और एसपी साहब अपनी जगह हक्का बक्का खड़े रह गए थे। और जब आपको मालूम है कि उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं और वो किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचा सकता है, तो क्यों खुला छोड़ रखा है उसे? किसी पागल खाने में दाखिल करवाएं उसे या फिर बांध कर रखें। और वो स्टूपिड सा चौकीदार, उसे बात तक करने की तमीज़ नहीं। एक से बढ़कर एक नमूना मौजूद है इस घर में। एसपी फैज़ान उलझे-उलझे अंदाज में अपनी जगह उठ खड़े हुए थे। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, और मेरी एक बात आप लिख लीजिए कि वो खुद तो पागल है ही, अपने साथ-साथ दूसरों को भी पागल करके छोड़ेगा। शदीद गुस्से और झुंझुलाहट में उसने सारे अदब-ओ-आदाब भुला दिए थे। ज़ुबारिया, फॉर गॉड सेक, तुम ही कुछ बताओ, ये सब क्या है? वो उसकी बेसरोपा बातों से उकताकर अपनी बेगम की तरफ पलटे, जो हैरान और परेशान खड़ी खुद भी उसके उस सारे किस्से से लाइलम लग रही थी। क्या आपके घर में एक से ज़्यादा ज़हनी मरीज़ मौजूद हैं? उनकी मासूमियत वान जाने पर वो झुलस कर रह गई थी। ओ नो मिज़ाब, तुम कहीं अरगान का ज़िक्र तो नहीं कर रही? ज़ुबारिया ने एकदम चौंक कर उसे देखा। ओह गॉड! ज़ुबारिया अपने सर पर हाथ मारकर बोली। फैज़ी, हो ना हो ये उसी शैतान की कारस्तानी है। क्या मतलब? ज़ुबारिया के पुरयकीन लहजे पर एसपी साहब ने मुस्तफसराना निगाहों से उसे देखा। शायद आपको याद नहीं, कुछ रोज़ पहले अरगान ज़िक्र कर रहा था कि वो एक ड्रामे में ज़हनी मरीज़ का किरदार अदा कर रहा है। ओह! वो गहरी साँस लेकर रह गए। सारी बात उनकी समझ में आ गई थी। मिस मिज़ाब, क्या उसने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की है? वो बहुत संजीदगी से पूछ रहे थे, मगर मिज़ाब उनकी तरफ मतवज्जो ही कहाँ थी। वो तो ज़ुबारी की मुबहम मुस्कुराहट और उस मुख्तसर सी बात में उलझ कर रह गई जो किसी और ही हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी। मिज़ाब, प्लीज़ तुम इधर बैठो। ज़ुबारिया उसका हाथ थामकर बहुत नरमी से मुखातिब हुई थी। मेरा ख्याल है अरगान की किसी शरारत की वजह से तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो गई है। गलतफ़हमी? वो गायब दिमागी से उन्हें देखने लगी, जबकि उसकी छठी हिस्स चीख-चीख कर ये ऐलान कर रही थी कि आने वाले लम्हे में उसे बेवकूफ़ी और पागलपन की नहायत आला दर्जे की सनद मिलने वाली है। इनफैक्ट मिज़ाब, अरगान कोई सचमुच का पागल या ज़हनी मरीज़ नहीं है। उसने हाल ही में एक स्ट्रीट थिएटर जॉइन किया है, बस तब से उसने हम सब का नाक में दम कर रखा है। जो भी करैक्टर उसको मिलता है, घर में उसकी खूब रिहर्सल करता है, और मेरा ख़्याल है मौका देकर उसने तुम्हारे साथ भी कोई शरारत की होगी। शरारत? उसने बेयकीनी से ज़ुबारिया को देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बहला रही हूँ, या कोई मज़ाक उसने खोजना जहाँ, मगर ज़ुबारिया के चेहरे पर इस बात का शायबा तक न था। पक्का ड्रामेबाज़ है वो। ज़ुबारिया न जाने क्या कुछ कह रही थी, उसकी नज़रों में बैक वक़्त कितने ही लम्हे घूम गए। उसके दीवानावार कहे, उसका टूट कर रो देने का अंदाज़, उसकी आँखों से छलकती वहशत, उसकी खुद कलामी, वो सब मज़ाक था, महज़ शरारत, सिर्फ़ ड्रामा। और मैं? उसने धुंधलाई आँखों से अपनी दाएँ हथेली को देखा जहाँ ज़ख्म पर क्रिंड अभी भी मौजूद था। बेपनाह दुःख, शर्मिंदगी और खुजालत आमेज़ बेबसी से उसकी आँखें भर आईं। प्लीज़ तुम उस बात को ज़्यादा महसूस ना करना, वो ऐसा ही शरीर है, हर वक़्त हँसने-हँसाने वाला। शरारत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। ज़ुबारी शर्मिंदगी से वज़ाहत कर रही थी।
हाँ होगा शरीर, मगर मुझसे उसका ऐसा कौन सा ताल्लुक, कौन सा रिश्ता था कि उसने ऐसा घटिया मजाक किया मेरे साथ। एहसास तौहीन से उसका चेहरा सुर्ख होकर रह गया था। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, उसका मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं होगा, बिलीव मी। खुद मैं कई बार उसके हाथों बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। पता है फैज़ी उस दिन क्या हुआ? वो किसी और वाक़ये में उलझ गईं। जी, उसका मकसद मुझे महज़ खौफ़ज़दा करना और मेरा तमाशा बनाकर उससे लुत्फ़-अंदोज़ होना था। उसे अपनी मुज़हक़ा-ख़ेज़ हालत याद आ गई जब वो दीवानावार सड़क पर भाग रही थी और जहाँ उसका दिल फूट-फूट कर रो देने को चाहा, वहाँ बेइख्तियार ही दिल में ये ख़्वाहिश भी उभरी कि कहीं से वो बदतमीज़ शख़्स उसके सामने आ जाए और वो उसका मुँह नोच कर उसका हुलिया बगाड़ कर रख देगी। घर वालों की बात कुछ और होती है ज़ुबारिया, लेकिन मिस मेज़ाब के साथ ऐसा कोई भी मज़ाक कतई नामुनासिब बात है। एसपी साहब ने उसके चेहरे पर फैलती नागवारी को बगौर देखकर कहा था। मेरा ख्याल है अब मैं चलती हूँ। बहुत ज़ब्त के बाद उसने कहा तो अपनी आवाज़ खुद भी मुश्किल ही सुन सकी थी। देखिए मिस ज़ाबर खान ने आपके साथ जो भी शरारत या बदतमीज़ी की है उस पर मैं तो शर्मिंदा हूँ ही, मगर इस बात का भी यकीन रखिए कि वो खुद आपसे इस सिलसिले में माज़रत करेगा। एसपी साहब की भारी आवाज़ उसके अकब में गूंजी थी, मगर वो कोई भी रिस्पॉन्स दिए बगैर मरे-मरे कदमों से बाहर निकल आई थी। एक्सक्यूज़ मी टीचर, मानी की मासूम आवाज़ ने उसे लम्हा भर के लिए रोक दिया था। आप कल आएँगी ना? उसे डर था कि चाचू का मज़ाक उनको एक अच्छी टीचर से महरूम कर देगा। टीचर प्लीज़, प्लीज़ आ जाइएगा, वो मुल्तजी लहजे में उसका हाथ पकड़े कह रहा था। मिज़ाब ने सपाट सी नज़रों से उसे देखा और फिर आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ाई। पुख्ता रविश पर चलते उसने पलटकर टेरेस और फिर लॉन के उस मखसूस हिस्से को देखा, जहाँ वो इस नाम-नेहाद पागल को अक्सर व बेशतर दीवानगी के आलम में देखा करती थी। मिज़ाब बीबी अपने क़यास और मफ़रूज़े पर यकीन की मोहर सबत करने से पहले हालात व वाक़यात को जाँचने और परखने की ज़रा-सी कोशिश ही कर ली होती, तो आज यूँ सबके सामने खफ़्फ़त तो न उठानी पड़ती। वो कहीं भी मौजूद नहीं था, मगर जैसे हर जगह खड़ा उसका तमसख़्र उड़ा रहा था। एक तवील साँस लेकर उसने गर्दन मोड़ ली और नज़रें अपने उठते-गिरते कदमों पर गाड़ कर आगे बढ़ती चली गई। क्या वाक़ई हालात इंसान को इस कदर बदल देते हैं, या फिर मैं ही बेहिस हो गई हूँ? उसने सड़क के किनारे रुककर तेज़ रफ़्तार ट्रक को गुज़र जाने दिया। अगर कोई और वक़्त होता तो मैं इस अरगान की ऐसी दुर्गत बनाती कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखती, और वो चौकीदार उसे तो शायद मैं गोली से उड़ा देती, मगर अब मैंने ये सब इस तरह बर्दाश्त कर लिया है जैसे ये मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ हुआ। उसने भागकर सड़क क्रॉस की और चर्च रोड के घने सायादार दरख्तों की पनाह में चलने लगी। शायद इसलिए कि बहुत हद तक कसूर मेरा अपना है, मैंने अपने ख्याल से आगे कुछ सोचने की, जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। उससे बढ़कर कम अक्ली क्या होगी कि मैंने उसके मुतालिक जानने के लिए फितरी तजस्सुस का मुज़ाहरा भी नहीं किया। ज़ोबारिया, बच्चे, मुलाजिम सभी तो थे मेरे आस-पास। उसे अपनी कोताही का बुरी तरह खल रही थी। इंसान को अपनी सोच और ख़याल पर इस कदर भी भरोसा नहीं होना चाहिए कि वो उसकी तस्दीक की ज़हमत करना भी गवारा ना करे। उसने खुद को बुरी तरह लताड़ा। चलो मान लिया कि यहाँ तक सारे का सारा कसूर मेरा है, मगर उसके बावजूद भी इस शख्स को इतना हक किसने दिया था कि वो उससे आगे सोचो कि एक यलगार थी जो उस पर हमलावर हुई थी। कदमों की रफ्तार के साथ खून की गर्दिश भी तेज तर हो गई थी, और उसी हालत में जब घर के सामने पहुंचकर उसका वास्ता बंद दरवाजे पे पड़ा तो अपना सारा गुस्सा दरवाजे को पीट कर निकाला था। अरे अरे क्या हो गया, कौन है भाई? सालिम ने बौखलाई अंदाज में दरवाजा खुला तो फौरन ही उसे एक तरफ हटाकर अंदर दाखिल हो गई। मालूम भी है कि ये वक्त आने जाने का होता है, इसके बावजूद दरवाजा यूं बंद होता है जैसे खजाने दफन हो। यहाँ पहले सड़कों की खाक छान कर रहो, फिर घंटा भर दरवाजे के सामने खड़े रहो। भैया बैग तख्त पर पटकते हुए उसने सख्त चले भुने अंदाज में कहा, फिर जूते उतारकर नंगे पाँव धप धप करती नलके की तरफ बढ़ गई। अकब में सारिम की दबी दबी हंसी की आवाज़ आई तो उसने पलट कर उसे घूरा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई? तुम तो आते ही यूं शुरू हो गए जैसे एक गुस्सीला और झगड़ालू शौहर दफ्तर से वापसी पर सारा गुस्सा अपनी मस्कीन सी बीवी पर निकालता है, जबकि ना तो तुम एक झगड़ालू शौहर हो, ना मैं मस्कीन सी बीवी। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सर झुककर नलके पर झुक गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आज के ज़माने में भी कोई फ़र्द इस कदर मासूम हो सकता है, वो हैरत भरे लहजे में कह रहा था। मिज़ाब ने दूर आसमान पर उड़ते परिंदों से नज़रें हटाकर उसे देखा। सुरमई सूट में चेहरे पर मासूमियत थी, वो शख्स उसे ज़हर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरा ख्याल है मासूम की बजाय बेवकूफ़ कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अरगान समझ नहीं सका वो खुद पर तंज़ कर रही है या उस पर, लेकिन उसके बावजूद वो शर्मिंदा हो गया। बाखुदा मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। मेरा तो ख़्याल था कि थोड़ी देर बाद मैं आपको असल हकीकत से आगाह करके अपनी एक्टिंग की दाद वसूल करूँगा, मगर आप तो बुरी तरह खौफ़ज़दा हुई कि हमारे भी हवास जाते रहे। बिलीव मी, अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि मेरे इस मज़ाक के इतने संगीन नताइज बरामद होंगे
तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत-ए-हाल की संगीनी किसी भी तरह आप पर असरअंदाज़ हुई हो। आपने तो खूब एन्जॉय किया होगा अपनी इस शरारत को, इसलिए अब आप मेरा मज़ीद वक़्त ज़ाया मत करें। मिज़ाब के लहजे में बला की सख्ती दर आई थी। ये तो आप कह रही हैं ना, ज़रा हमसे पूछिए, इस ज़रा से एक्सीडेंट में हम किस-किस तरह मुतासिर हुए हैं। सच भई रात को नींद नहीं आती हमें, आसमां पर रात को जितने भी सितारे निकलते हैं उन्हें 2 बार गिनता हूँ, तब कहीं जाकर नींद आती है। पहले तो दिल का चैन ही खोया था, अब दिल का भी कोई अता-पता नहीं। ऊपर से हमारे एसपी भैया की डाँट डपट, बंदा जाए तो जाए कहाँ? मेरी तरफ से जाएँ जहन्नम में, मगर मेरा रास्ता छोड़ें। मिज़ाब को उसका बेसाख्ता अंदाज़ एक आँख नहीं भा रहा था। अगर इस तरह नाराज़ होंगी तो कौन काफ़िर रास्ता छोड़ेगा? उसकी स्याह आँखों में मचलते गुस्से और खफ़गी को देखकर वो बेखुद सी अंदाज़ में कह तो गया, मगर उसकी खफ़गी के डर से फ़ौरन ही ज़बान दाँतों तले भी दबा ली थी। देखिए मिस्टर अरग़ान, अगर आपने मुझे मज़ीद तंग किया तो मैं आपकी शिकायत एसपी साहब से करूँगी। उसे मुस्तकिल मिज़ाजी से सामने डटे देखकर वो बुरी तरह ज़िद हो रही थी। व्हाट, यानी कि आपका ख़्याल है मैं आपको तंग कर रहा हूँ? कमाल है, मैं घंटे भर से आपकी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ और आप तो, किसने कहा है आप मेरी मिन्नत समाजत करें? वो एकदम चटक गई। अगर मजबूरी ना होती तो शायद मैं भूले से भी इस घर का रुख ना करती, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत मुझे यहाँ तक खींच लाई है तो बेहतर है कि आप मेरी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करें। शिद्दत जज़्बात से उसका चेहरा सुर्ख़ हो गया था। जवाबन वो चंद लम्हे होंठ भींचते उसे देखता रहा। डूबते सूरज की नारंगी शुआएं उसे अपने हिसार में लिए हुए थी। होंठों को कुचलती पलकें तेज़ी से झपका-झपका कर वो आँखों की नमी को खुश्क करने की भरपूर जद्दोजहद कर रही थी। उसे तवील सांस लेकर उस पर से नजरें हटा लीं और सर झटकते हुए उसके रास्ते से हट गया। उस रोज़ वो बख्तियार हाउस पहुंची तो पूरे घर में स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस आमिर की आवाज़ गूंज रही थी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? उसने कदरे हैरत से सोचते हुए कमरे में कदम रखा। आओ भई आओ, मिज़ाब उसे देखते ही वो खुशदिली से मुस्कुराई। सुनाए बहुत मेहनत कर रही हो सनी और मानी पर। उसके बैठते ही वो गोया हुई। जी हाँ, ये बच्चे खुद ही इतने मेहनती और समझदार हैं कि उसने कहना चाहा, मगर मिसेस आमिर हस्बे आदत अपनी कह चुकने के बाद किचन से निकलती ज़ोबारिया की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। वो बुरा-सा मुँह बनाकर किताब के सफ़े पलटने लगी। भई ये अरग़ान है कहाँ? सच भई, मैं तो उसकी तबीयत की ख़राबी का सुनते ही भागी चली आई। माशाअल्लाह बड़ा ही हंसोड़ बच्चा है। महफ़िल में जान डाल देने वाला। मुझे तो अपने बेटे की तरह अज़ीज़ है। वो अपने कमरे में है। मेरा ख़्याल है कि आप उससे वहीं मिल लें। ज़ुबारिया के कहने पर वो झट उठ खड़ी हुईं। अरे मिज़ाब, तुम क्यों बैठी हो? आ जाओ ना, अरग़ान की खैर-खैरियत पूछ लेते हैं। इयादत करना तो वैसे भी बड़े सवाब का काम है। मिसेज़ आमिर हर काम इतनी उजलत में करती थी कि दूसरा इंसान किसी बेबस बछड़े की तरह उनके पीछे बंधा चला आता था। उस वक़्त भी वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्होंने उस कदर अजलत में कहा कि जैसे वो अरग़ान की आदत के लिए ना उठी तो शायद सारी ज़िंदगी के लिए सवाब से महरूम कर दी जाएगी। वो दिल ही दिल में उन्हें कोसती हुई चारों नाचार उनके पीछे चल दी थी। अभी पहली ही सीढ़ी पर कदम रखा था कि जब फ़ोन की बेल बज उठी। उसके पीछे आती ज़ुबारिया ने फ़ौरन सूप का प्याला उसके हाथ में थमा दिया। प्लीज़ ये तुम ऊपर ले जाओ, मैं अभी फ़ोन सुनकर आती हूँ। माज़रत ख़ाहाना लहजे में कहती पलट गई थी। कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहली नज़र अरग़ान पर पड़ी। बढ़ी हुई शेव, बेतरतीब बाल और आँखों में बुखार की सुर्ख़ी, लेकिन इन आँखों में उसे देखकर लम्हा भर की हैरत के बाद जो तासुर उभरा था उसने मिज़ाब को चौंका दिया था। अरग़ान बेटा, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे यूँ बिस्तर में लेटे हुए। अब बस करो, ख़त्म करो अब ये ड्रामा। मिसेज़ आमिर ने उसके बाल मज़ीद बिखरा दिए। ड्रामा कैसा आंटी? वो तो बस एक ही दफ़ा किया था, तब से अब तक लगता है बददुआओं के हिसार में हूँ। उस रोज़ एक्सीडेंट होते-होते बचा और अब ये बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। उसका लहजा मैंने ख़ेज़ी लिए हुआ था, जिसको कमाल बख़ूबी से नज़रअंदाज़ करते हुए दरवाज़े के पास रखी चेयर पर जम गई। बद्दुआ कैसी? तुम्हें तो सिर्फ़ दुआ ही दी जा सकती है। उन्हें उस पर ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। अरे आंटी, अब हर कोई आप जैसा थोड़ी होता है। ऊपर से इतना सख्त जाबिर पत्थर सिफ़्त और अंदर से इतना नरम और गुदाज़, बिल्कुल मोम जैसा। हर कोई ऐसा ही होता है। मिसेज़ आमिर ने जैसे कान पर से मक्खी उड़ाई। वाक़ई, अंदाज़ में शोख़ी शरारत लिए हुए उसने मिज़ाब को देखा, जो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज़ करके कमरे का जायज़ा लेने लगी थी, जो उसकी तवक्को के बरअक्स बहुत सादगी और तरतीब लिए हुआ था। इसके साथ ही यहाँ हम इस नावल का पहला पार्ट ख़त्म करते हैं। कल इस नावल के दूसरे पार्ट के साथ हाज़िर होंगी। उसके साथ ही आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसके दूसरे हिस्से के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।